Yes, good morning students. Good morning all of you. How are you? Fine? ठीक है. Next today's our topic is articles. What? Articles. You have read about the articles, I know that, but again the clear knowledge of the article and that articles. Our topic is articles. Article A and D. Article is a kind of determiner. You know that what is determiner? Determiner is qualify and modify of the noun. So same quality of the articles. So article is kind of determiner which qualify and modify of noun. So articles and determiners both are qualify and modify of the noun. Next thing, articles is used only for noun. Article is used for only for noun. Articles are used only for noun. Articles are used only for noun and before noun. It means whenever you are use of the articles, it means article use be always before the noun and for the noun. अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है, इट मीन्स इट इज डन कि वहाँ आर्टिकल भी नहीं होगा. आर्टिकल तभी यूज होता है व्हेन द वहाँ नाउन है. तो नाउन आर्टिकल हम यूँ कह सकते हैं कि आर्टिकल का जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो ओनली फॉर नाउन के लिए हुआ है. और प्लेस भी आपने डिसाइड कर ली कि प्लेस कहाँ है, नाउन के पहले. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. तो थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल विच इज indefinite article A and the definite article D, zero article, no use of article. Most of the students they know about that how many articles, article A and D, three articles, but we read about that details. Indefinite article, definite article and zero article. Zero article means where no use of article, because this option we read it because in the competition exams there are four options of the articles. One A option is A, B option is N and C option is there, and fourth option is none of these. None of these I mean cross. There is no use of article. वहाँ किसी भी article का use नहीं होता है. Most of the students they know about that where the use of A and D, but they don't know about that where never article is used. तो इट मीन्स जहाँ कहीं पर भी कभी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है उसे हम कहेंगे जीरो आर्टिकल, नो यूज़ आर्टिकल्स. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल, आई नो डेस डेस इंग्लिश. आई नो इंग्लिश. आई नो इंग्लिश. अब यू हैव द ऑप्शंस ए एन दी एंड क्रॉस. क्रॉस मीन्स जीरो आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स. तो नो यूज ऑफ आर्टिकल्स इट मीन्स यू हैव द ऑप्शन ए एन ए और बी ऑप्शन एन, सी ऑप्शन डी and D option cross. A option A, B option N, C option D and D option cross. तो which is used? कौन सा यहाँ यूज होगा आपके आर्टिकल A and D? तो A and D में से यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल यूज होता है. We have the four options of this A and D and cross. Yes, if the sentence is same and this sentence connect with the another clause and this clause is shows कि English is which use. Suppose if you are talking English language, this is English. If you are talking English language, then this is English. It means there is no use of article. Cross. Cross होगा. Then no use of article there. And if you are talking about the people of England, English, we जैसे Indians, English, तो English people talking about the people of England, then
द आर्टिकल इज यूज्ड, द आर्टिकल इज यूज्ड। तो दिस इज इंग्लिश, सपोज यू आर इमेजिन दैट दिस इज इंग्लिश आर या यूज फॉर द पीपल ऑफ द इंग्लिश। आपके यहाँ सेंटेंस है आगे, आप किसी ग्रामेटिकल सेंटेंस में आप बुक पढ़ रहे हैं और वो इंग्लिश आपको इंडिकेट करती है कि ये इंग्लिश यहाँ पे पीपल ऑफ इंग्लैंड के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल दे का यूज होगा। और किसी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे नो आर्टिकल। आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश एंड इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इट मीन्स दिस इज इंग्लिश is an interesting subject, so it means this English is used only for subject, then no use of article, it means zero article। तो जीरो आर्टिकल के लिए होता है। आगे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स ए एंड दी, ए एंड दी, बट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट they know about the what is the pronunciation of the. Some students are read the word the, some students read this word the, and some students read the, and whole life the students are confused, very confused, because which word, which pronunciation of the is clear। तो pronunciation द करेक्ट है या दी करेक्ट है या द करेक्ट है, तो हम देखते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, देखिए द वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स, सपोज यू राइट समथिंग द वर्ड्स, तो द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स। तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके वहां पर हम द का यूज करेंगे। The word which start from consonant pronounce the। अगर कहीं आप लिखते हैं सेंटेंस में और वहाँ पर यदि कि आने वाला नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले लिखा जाने वाला वर्ड जो आर्टिकल द है इसे द बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। द वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम वोवल, द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम वोवल, जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। जो नाउन वोवल से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? वोवल से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल द जिसको हम राइट करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा दी प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द एलिफेंट। अब एलिफेंट नाउन है, नाउन का फर्स्ट लेटर यहाँ पे वॉवेल है और वॉवेल होने के कारण यहाँ पर इस प्रोनाउंसिएशन इस द को हम दी रीड करेंगे, द नहीं करेंगे। तो द इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड दी इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड बट नेवर स्पीक द। तो दिस इज द, अब द दी because the consonant vowel sound, this is the, this is the elephant, this is the man। अब man, the noun starts from consonant sound, consonant sound, and being a consonant sound before the article the is pronunciation is the। तो इसका जो pronunciation होगा वो the होगा, तो pronounced the। तो डिफरेंस बिटवीन इट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दी एंड द। वंस मोर, आने वाला नाउन के पहले दी और इस नाउन के कॉन्सोनेंट है तो द होगा। द वर्ड विच इज एम्फसाइज, अब यही रूल इतना ही नहीं है, किसी भी वर्ड को एम्फसाइज, स्ट्रेस करते हैं आप, बहुत दबाव दे करके किसी प्रेशर से किसी वर्ड को आप बोलते हैं एम्फसाइज, तो उससे पहले होने वाला जो आर्टिकल है द का यूज होगा उसे भी दी बोलेंगे, इवन चाहे वो साउंड कॉन्सोनेंट हो और चाहे वोवल हो। तो किसी भी एम्फसाइज वर्ड्स की हम बात करें, दिस इज द फैन यू हैव ब्रोकन इट, वही पंखा जिस पे
तुमने तोड़ दिया उसको, तो वहाँ पे किसी आर्टिकल दे की बात करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो उस नाउन से पहले भी हम मोस्टली इसको दे प्रोनाउंस करेंगे। तो इट इज़ कन्फ्यूज क्लियर यो का दी एंड द। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज आर्टिकल पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, पोजीशंस, प्लेस। In English, every parts of speech, I mean the noun, pronoun, verb, conjunctions, prepositions, subject, verb, adjective, adverb, all they are their own fixed place. उनकी सबका अपना अपना एक फिक्स प्लेस होता है, और आर्टिकल्स का भी एक अपना फिक्स प्लेस है कि इसे हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो देखिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर द नाउन, यू नो, यू हैव रीड इट कि आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर द नाउन। आर्टिकल यूज किसके लिए हो रहा है? नाउन के लिए हो रहा है, और उसका प्लेस कहाँ है? जस्ट बिफोर द नाउन। तो जस्ट बिफोर द नाउन होगा। तो जैसे एग्जांपल देखें, दिस इज ए टॉय, तो टॉय नाउन है, तो टॉय नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ। दिस इज ए टॉय। सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। तो आर्टिकल का प्लेस डिसाइड हमने कर लिया कि आर्टिकल का यूज अगर होगा तो किसके लिए होगा? नाउन के लिए होगा, और पहले आएगा आर्टिकल या बाद में आएगा, तो इसका यूज प्लेस आपने डिसाइड किया कि आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर द नाउन, उस नाउन के जस्ट पहले आता है और उसी नाउन के लिए यूज होता है और उसे मॉडिफाई, क्वालिफाई करता है ही नाउन। नेक्स्ट देखिए, इफ एनी एडजेक्टिव इज यूज्ड, हमने देखा कि एडजेक्टिव आल्सो क्वालिफाई, मॉडिफाई ऑफ द नाउन, एंड एडजेक्टिव प्लेस इज फिक्स्ड बिफोर द नाउन। तो एडजेक्टिव जब नाउन से पहले आएगा तो अब टू कंट्राडिक्टरी प्रॉब्लम हो गई कि नाउन के पहले तो सब आर्टिकल आएगा और नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, तो उस समय हम आर्टिकल अपनी प्लेस चेंज करता है। इफ एनी एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज होता है, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, बिफोर द एडजेक्टिव, नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल है और आपने आर्टिकल के साथ में उस नाउन को एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा उस एडजेक्टिव के जस्ट पहले वाली पोजीशन ले लेगा आर्टिकल्स। जैसे हम एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, दिस इज ए ब्यूटीफुल टॉय, सेम दिस इज ए टॉय, आर्टिकल यहाँ यूज हुआ। इनके बीच में हमने अगर हम ब्यूटीफुल का यूज करें तो आर्टिकल ए, यहाँ ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है वो ए के पहले नहीं होगा, ए के बाद में यूज होगा। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल टॉय, तो ब्यूटीफुल टॉय नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और ए आर्टिकल, ए आर्टिकल हुआ। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल टॉय, यानी कि पहले फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि आर्टिकल फिक्स प्लेस बिफोर द नाउन। सेकंड टॉपिक में, सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि अगर एडजेक्टिव का यूज होता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होगा। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल टॉय। नेक्स्ट एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय, तो बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले यहां आर्टिकल का यूज हुआ, यहां आर्टिकल का यूज हुआ, आर्टिकल का यूज हुआ। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। हमने अभी यहां पे आर्टिकल के लिए प्लेस ब्लैंक बनाया है, ऑप्शन दिया है एग्जाम में कि राम इज गुड बॉय, और यू हैव टू ब्लैंक्स, टू ब्लैंक्स, और ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट में ए, सेकंड में क्रॉस, बोथ में, दोनों में ए का यूज होगा, दोनों में क्रॉस का यूज होगा, और लास्ट में फर्स्ट में क्रॉस और सेकंड में ए। तो इस तरह को ऑप्शन में हम क्या करेंगे,
राम इज गुड ए बॉय, नो, ऐसा जम नहीं रहा, लेकिन कई स्टूडेंट कर देंगे कि बॉय के लिए यहाँ ए होगा। तो अगर हम सूटेबल एंड प्रॉपर देखें तो प्लेस देखिए, नाउन, गुड, एडजेक्टिव, और ये प्लेस यहाँ आ रही है आर्टिकल की, तो आर्टिकल यहाँ पे ए होगा, तो ए और इस जगह क्रॉस होगा, तो ऑप्शन कौन सा बना? फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा। तो आर्टिकल अपनी फिक्स प्लेस रखता है, तो आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर द नाउन, एंड इफ इन द सेंटेंस या एनी सेंटेंस एडजेक्टिव आल्सो यूज इन द सेंटेंस, तो देन नाउन जस्ट बिफोर द नाउन एडजेक्टिव एंड जस्ट बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में नाउन का यूज होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं अपन एक जो एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। हाँ, एडवर्ब इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव विच क्वालिफाई ऑफ नाउन, देन आर्टिकल इज यूज बिफोर द एडवर्ब। पहले वाली स्क्रीन में आपने देखा था कि प्लेस डिसाइड कर रहे हैं हम कि वेयर वी यूज आर्टिकल्स, प्लेस, इसकी प्लेस कहाँ पे है? नाउन से पहले, वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एडजेक्टिव इज यूज बिफोर द नाउन देन आर्टिकल इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ द एडवर्ब इज यूज बिफोर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन, तो वेयर द प्लेस ऑफ द आर्टिकल? तो आर्टिकल इज यूज बिफोर द एडवर्ब। देखिए, इट इज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। नाउन में भी कंप्लीमेंट आइदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमारे पास तीन चीज है। नाउन के पहले नाउन से पहले एडजेक्टिव, बिफोर एडजेक्टिव एडवर्ब, एंड एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज होगा। तो आर्टिकल में अगर एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो आर्टिकल यूज होगा नाउन के पहले, आर्टिकल के साथ में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज होगा, और उस सेंटेंस में यदि एडवर्ब भी है तो देन आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर द एडवर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल, दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल टॉय, दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल टॉय, नाउन, जस्ट बिफोर नाउन एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव वेरी एडवर्ब, एंड एडवर्ब के पहले यहाँ पे किसका यूज हुआ है? आर्टिकल का यूज हुआ है। जस्ट, सीता इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सीता नाउन और सब्जेक्ट, इज वर्ब, ए आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, और गर्ल नाउन है। तो नाउन जस्ट बिफोर द नाउन एडजेक्टिव, एंड जस्ट बिफोर द एडजेक्टिव एडवर्ब, एंड आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर एडवर्ब। तो इसकी पोजीशन चेंज होती है, इसकी डिसाइड प्लेस है कि आई हैव सीन ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव सीन ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस, आई सब्जेक्ट, हैव सीन वर्ब, ए आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और हाउस नाउन। तो आई हैव सीन ए वेरी ब्यूटीफुल, तो नाउन कंप्लीमेंट भी पॉसिबल है और ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट, जनरली आर्टिकल इज यूज जस्ट आफ्टर द वर्ड्स। व्हेन if you are in your future life, then you read the English lessons, an article is used just before these places, adjective noun के पहले, adjective के पहले, adverb के पहले भी अगर आपको आर्टिकल दिखता है, और इसके एक्सेप्ट इन अलग प्लेसेस में आपको आर्टिकल दिखता है, तो वहाँ आप कहोगे कि या तो रूल गलत थे या सर गलत थे। इसलिए हम एक और आपको एक्सेप्शंस बता देता हूँ कि जनरली आर्टिकल इज यूज जस्ट आफ्टर द वर्ड्स, इन वर्ड के बाद में आर्टिकल का यूज होता है, और वो ये वाली प्लेस को फॉलो नहीं करता है।
देखिए, ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रेदर, what and quite, exactly, like that. These words are used but they don't follow the rules. देखिए, all the boys, all डिटर्मिनर है, लेकिन डिटर्मिनर को एंसेंट इंग्लिश में हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो एडजेक्टिव के पहले अकॉर्डिंग टू रूल नाउन, नाउन के पहले ऑल एडजेक्टिव का यूज होगा और ऑल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन ये रूल यहाँ ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देखिए जस्ट इनके बाद में भी हम यूज करते हैं। तो ऑल द आर्टिकल यहाँ यूज हुआ। नेक्स्ट, बोथ द गर्ल्स, गर्ल्स नाउन है, बोथ डिटर्मिनर यूज है, और डिटर्मिनर के पहले यहाँ पे बिटवीन यहाँ किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सेम, सच ए बॉय, सच, सच के बाद और इन दोनों के बीच में यहाँ एक का यूज हुआ है। हाफ एंड आर, हाफ एडजेक्टिव है और आर नाउन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एन का यूज कर लिया हमने। फिर देखिए, रेदर ए हॉट वेदर, वेदर नाउन है और रेदर के बाद में जस्ट यहाँ पर किसका यूज हुआ है, ए का हुआ है। वाट एन आइडिया, आइडिया नाउन है, वाट और इनके पहले बीच में यहाँ आर्टिकल का यूज हुआ है। तो सम दीज वर्ड्स जनरली टेक्स आफ्टर द आर्टिकल्स, नॉट बिफोर। एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन, एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन एंड हाउ, सो, टू, इज, these words are used before the adjective, ये adjective से पहले यूज होते हैं। then article is used between adjective, between the adjective and noun, between the adjective and noun। देखिए, how का यूज हुआ, day नाउन है, fine एडजेक्टिव है, फिर भी आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव और नाउन के बीच में यूज हो रहा है। जनरली इस रिकॉर्डिंग का अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल से, इस रूल के अकॉर्डिंग तो हमारे फाइन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यहाँ यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ यूज नहीं हो रहा क्योंकि एक्सेप्शंस हमने बता दिए कि हाउ, सो, टू, इज, these words are used before the adjective, then article used between the adjective and noun, दोनों के बीच में यूज होगा। यह दे नाउन, देखिए, it is so good a chance, it is so good a chance, नाउन गुड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बीच में यहाँ किसका यूज हुआ, एडवर्ब का यूज हुआ। फिर देखिए, he is too proud, he is too proud a man to ask for help, तो man नाउन है, मैन, मैन क्या है, नाउन है, प्राउड एडजेक्टिव, टू एडवर्ब, फिर भी आर्टिकल यूज यहां नहीं होकर के ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे टू यूज होने के कारण आर्टिकल का यूज प्लेस चेंज होगी और आर्टिकल का यूज जस्ट नाउन के पहले आगे हम कह सकते हैं कि बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव, बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव यूज होगा बिकॉज टू यूज हुआ है। तो सो, टू, इज, हाउ का यूज होते हैं तो आर्टिकल इज यूज बिटवीन एडजेक्टिव एंड नाउन। तो दीज आर द प्लेसेस, ये अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है कि प्लेसेस कहाँ हैं, आर्टिकल की प्लेस कहाँ डिसाइड हो। हम आर्टिकल यूज़ करने से पहले उसकी हमने यह तय कर लिया कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ होगा, इसकी फिक्स प्लेस कहाँ है, इसका पोजीशन क्या है। इसका हमने टॉपिक डाला था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो दीज आर द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, ये आर्टिकल की पोजीशंस होगी। बिकॉज इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देर आर द टू ब्लैंक्स, there are the two blanks and one blank is suitable place and another place is unsuitable place, and there are the options like that A cross cross
ए क्रॉस क्रॉस और ए। तो ये आपको तभी करेक्ट जाएगा जब आपको पास ये पता होगा इस चीज़ का कि आपके आर्टिकल की प्लेस कहाँ डिसाइड है, और जहाँ प्लेस होगी वहाँ आर्टिकल आएगा, और जहाँ प्लेस नहीं होगी वहाँ नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे हम आगे आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट बिफोर we read about the article, indefinite article and definite article, first we find out the articles in the paragraphs. तो find out the articles in the following lines. इन लाइन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, आर्टिकल का यूज़ कौन से प्लेस पर यूज़ हुआ है, और आर्टिकल को फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। जैसे हम कहें ऑल द मेंबर्स, हमने किसी भी एक बुक से एक आर्टिकल लिया, यहाँ कुछ लाइंस ली, और लाइंस लेते ही सबसे पहले ही लाइन में फर्स्ट वर्ड हमारा क्या आया, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। इट मीन्स हमें लगता है कि ये कोई नोटिस है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है स्टाफ मेंबर्स के लिए। और अगर हमने ऑल वाला रूल नहीं पढ़ा होता तो आप कहते हैं कि मेंबर्स नाउन है, ऑल एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल तो यहाँ यूज़ होना चाहिए। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही हमारा रूल पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको पता है कि ऑल के बाद द आर्टिकल क्यों यूज हुआ। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स, द स्टाफ ऑफ वर्ल्ड। स्टाफ एक डेफिनेट है कि उसी स्टाफ की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। आर वार्न्ड, चेतावनी दी जाती है, that the working hours of the office, working hours नाउन है और डेफिनेट वर्किंग आवर्स है, इससे पहले यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल्स। नेक्स्ट, ऑफ द ऑफिस, ऑफिस भी इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक ऑफिस की बात करें तो एक ऑफिस की बात करें तो उस ऑफिस के पहले यहाँ किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। तो द ऑफिस आर 10 to 5 टाइमिंग है। हैंड्स अटेंडेंस इन द ऑफिस, फिर वही ऑफिस पहले एक बार यूज हुआ है, इसलिए दोबारा अगर वो नाउन रिपीट होता है तो उसे हम डेफिनेट मानते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल के कारण यहाँ किसका यूज हुआ, आर्टिकल द का यूज हुआ है। द ऑफिस इज डिजायर एट 10 AM, डिजायर 10 AM। It has been noticed that some of the employees, फिर देखिए एम्प्लॉय यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय पर्टिकुलर डेफिनेट चीज़ है कि वो उसी स्टाफ मेंबर्स के यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जस्ट नाउन के पहले यहाँ किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। आर हैबिचुएटेड ऑफ कमिंग लेट, किस चीज़ की आदत हो गई है उनको, लेट आने की आदत हो गई है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी की कमी के कारण एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, एक एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन लिया जाएगा। और यहाँ पर एन क्या है, आर्टिकल है, एन का यूज आर्टिकल का यूज हुआ है। और एक्ट क्या है, एक्ट नाउन है, तो एक्ट। और साउंड कौन सी है, वोवल साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज हुआ है, एन हुआ है। तो इन लाइंस में हमने फर्स्ट ये फाइंड आउट किया है, अभी रीड नहीं किया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल अब हम रीड करेंगे आगे। लेकिन पहले हमने कोई सा भी किसी बुक्स में हमने एक जस्ट पैराग्राफ उठाया और उठा करके हमने ये पता कर लिया कि ये वर्ड्स आर्टिकल्स हैं, और ये वर्ड्स आर्टिकल इसलिए यूज हुए क्योंकि ये नाउन्स आए और नाउन्स के पहले आर्टिकल आए। इन किसी भी बुक्स का कोई भी पैराग्राफ आप देखेंगे, देयर इज नो आर्टिकल विदाउट नाउन। आर्टिकल का अगर जन्म हुआ है तो वो केवल और केवल किसके लिए हुआ है, नाउन के लिए हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक सडनली किसी भी एक पैराग्राफ का हमने लाइन लिखी और लाइन लिख करके हमने पता किया कि यहाँ पे ये आर्टिकल का यूज होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बार हम करते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल। यस स्टूडेंट्स, indefinite article use of a and next
टॉपिक इज इंडेफिनेट आर्टिकल। पहले वाली स्क्रीन पे आपने पढ़ा कि प्लेसेस, प्लेस ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, वेयर वी यूज, प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट थिंग्स। एंड इंडेफिनेट आर्टिकल आर यूज ऑफ ए और एन। तो देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर ओनली काउंटेबल सिंगुलर एंड नॉन आइडेंटिफाइड नाउन। जस्ट इस स्क्रीन से पहले हमने एक कॉमन आर्टिकल लेके चल रहे थे कि आर्टिकल का यूज यहाँ होगा, लेकिन अब केवल क्लासिफिकेशन किया है, केवल क्लासिफाइड हमने एक अलग से टॉपिक लिया है कि इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे। यहाँ जो भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं ये केवल और केवल इंडेफिनेट आर्टिकल है। आपके माइंड में ये मेकअप होना चाहिए कि माइंड मेकअप में हमारे साथ ये जो रूल्स चल रहे हैं उनमें केवल और केवल ए एन का नहीं होगा और ए एन का ही होगा, सॉरी ए एन का ही यूज होगा और आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा, आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा और केवल ए एन का यूज होगा। तो देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल कहें चाहे आप ए ऑब्लिक एन का यूज कहें, तो इंडेफिनेट आर्टिकल और ए एन इज यूज्ड बिफोर ओनली। हम पहले कह रहे थे कि काउंटेबल या नाउन के पहले यूज होगा, लेकिन अब देखिए जो इंडेफिनेट नाउन ए एन का यूज होगा वो नाउन रिस्ट्रिक्ट है, केवल और केवल काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए एंड नॉन आइडेंटिफाइड नाउन होना चाहिए। 3 कंडीशंस हो गई। इफ यू आर अप्लाई ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इट मीन्स इट इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द नाउन शुड बी काउंटेबल, सिंगुलर एंड नॉन आइडेंटिफाई होना चाहिए। 91 हम शुड भी किसी का मस्ट भी कह सकते हैं कि द नाउन शुड बी या मस्ट बी काउंटेबल, सिंगुलर एंड नॉन आइडेंटिफाई है। मस्ट यूज किया है कि यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए ए एन का यूज होगा ही नहीं, इसलिए हमने मस्ट कहा। फिर हमने कि मस्ट इसलिए कहा कि सिंगुलर होना चाहिए वो नाउन, ए एन का यूज होगा, इट मीन्स इट इज मस्ट दैट नाउन मस्ट बी सिंगुलर। प्लूरल के पहले ए और एन का यूज होगा ही नहीं। और जब हम किसी नाउन को आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आइडेंटिफाई होते ही वो नाउन कौन सा हो जाता है, डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल के सामने यहाँ आर्टिकल के डेफिनेट आर्टिकल के पहले यहाँ किसका यूज होगा, वहाँ होगा आर्टिकल दी का यूज होगा, दे का। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि नॉन आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही है हमारी किसके लिए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के लिए। द नाउन मस्ट बी काउंटेबल एंड द नाउन मस्ट बी सिंगुलर एंड नॉन आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो 3 थिंग्स इज वन इज काउंटेबल, नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड थर्ड इज नॉन आइडेंटिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 1, रूल्स हम देखें। रूल नंबर 1, indefinite article is used before singular common noun and collective noun. There are 5 kinds of the noun: material noun, abstract noun, proper noun, collective noun, common noun, है ना। तो indefinite article is used before singular noun, singular होगा। इसके साथ ये भी रिस्ट्रिक्ट है कि वो कौन सा होगा, कॉमन नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए एंड कलेक्टिव नाउन के पहले भी यहाँ हम किसका यूज कर सकते हैं, यानी कि 5 नाउन्स में से 2 नाउन्स ऐसे हैं हमारे पास, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज होगा और रिमेनिंग्स जो 3 नाउन्स बचे हमारे पास में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, इन 3 नाउन्स के पहले कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज होगा ही नहीं। अगर आप इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं, इट मीन्स 2 ही नाउन होंगे वो, या तो आइदर वो नाउन क्या होगा, कॉमन होगा, और नहीं तो दूसरा नाउन क्या होगा, कलेक्टिव होगा। अब आप कंफ्यूज होगा कलेक्टिव कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल्स। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक काऊ है। काऊ कॉमन नाउन है, कॉमन है काऊ, सिंगुलर है और नाउन है। तीनों अप्लाई कंडीशन इसमें हो रही है, नाउन है, कॉमन है और सिंगुलर है। इससे पहले हमने आर्टिकल किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया।
नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए फुटबॉल टीम। किसी फुटबॉल टीम के बारे में बात करें कि वो फुटबॉल टीम है। अब उस टीम में मेंबर कितने हो सकते हैं? मोर देन 10 मे बी द प्लेयर। तो किसी भी टीम में क्रिकेट की बात करेंगे तो 11 प्लेयर्स, या ज़्यादा किसी और टीम की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ बोर्ड की बात करें, या किसी में मेंबर ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मेंबर ज़्यादा होने के बाद भी वो ग्रुप है, यूनिट है, एक इकाई है, और इकाई के कारण हमने वहाँ का आर्टिकल किसका यूज किया? ए का यूज किया। देयर इज ए फुटबॉल टीम। फुटबॉल है, टीम है, और टीम आपको पता है इस टीम के अंदर कितने प्लेयर होंगे? एक से ज़्यादा प्लेयर होंगे। और उस फुटबॉल टीम में एक से ज़्यादा प्लेयर होने के बाद फिर भी हमने किसका यूज़ किया? ए का यूज़ किया, क्योंकि वो एक यूनिट है, एक इकाई बन गई है, इसलिए हमने यहाँ किसका यूज़ किया? ए का यूज़ किया। नेक्स्ट, रूल 2, इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर कंप्लीमेंट नाउन। बिफोर कंप्लीमेंट नाउन हमने सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट, देखिए मैं एक बार यहाँ बताता हूँ। सब्जेक्ट एस वी ओ एस वी सी, एस वी सी। You know about what the difference between object and complement? There are the two kinds of verb. तो verbs, some verbs are takes transitive verb, and transitive verb takes after object, and intransitive verb there is no use of object. तो टू टाइप वो वर्ब में हम बात करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब का टॉपिक है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, कुछ हम ये एक इजी लैंग्वेज में ये हम समझ सकते हैं कि इजी लैंग्वेज में सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट खुद ही अपने आप में वर्ब के बाद में अगर वो सेल्फ पजेसिव होता है, सेल्फ होता है, खुद अपने आप में होता है। जैसे हमने कहा ही इज ए टीचर, जो ही है वही टीचर है, तो जो सब्जेक्ट है वही वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, ये कंप्लीमेंट होगी। तो इस कंप्लीमेंट की कंडीशन में हमने कहा क्या? ही इज ए टीचर, तो ही और टीचर सेम है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट होने के कारण यहाँ हमारा किसका यूज हुआ? आर्टिकल ए का यूज किया। नेक्स्ट में सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे हमने या ब्यूटीफुल स्टार, तो इस गर्ल क्या नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव से पहले यहाँ क्या हुआ? आर्टिकल हुआ। तो यहाँ पे जो ये कंप्लीमेंट है, सी है वही गर्ल है, कंप्लीमेंट के पहले यहाँ आर्टिकल का यूज हुआ। नेक्स्ट देखिए, मुकेश इज ए सिंगर, मुकेश इज ए सिंगर, तो सिंगर मुकेश है, और मुकेश सिंगर होने के कारण यहाँ पे किसका यूज हुआ? ए का यूज हुआ। इसमें हम अगर एक बात बीच में आई है, अगर हम इस गर्ल को हटा दें तो क्या सेंटेंस राइट है? क्या सी इज ए ब्यूटीफुल, और कंडीशन इसलिए है कि कंप्लीमेंट में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, कंप्लीमेंट में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। ठीक है, मुकेश इज ए सिंगर। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, किस किस के लिए किया जाता है? रेट के लिए, प्राइस के लिए, और स्पीड के लिए। किसी वस्तु का मूल्य बताना हो, कीमत बतानी हो, किसी स्पीड बतानी हो, बॉल की स्पीड हो सकती है, कार की हो सकती है, बाइक की हो सकती है, तो हम हिंदी में हम कहते हैं कीमत दर चाल। तो रेट, प्राइस और स्पीड, कीमत दर चाल, रेट, प्राइस और स्पीड के लिए भी किसका यूज होता है? आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, पेट्रोल सेल्स एट 80 रुपीज ए लीटर, पेट्रोल सेल्स एट 80 रुपीज। ये जो 80 रुपीज है ये क्या चीज है? ये उसकी रेट है, किस रेट से बिकता है। यहाँ पे रेट है।
हम क्या आप मार्केट में जाते हैं, आप आलू के भाव पूछते हैं भाई क्या भाव दे रहे हैं, तो जो आलू की जो कीमत है वो प्रति किलोग्राम से बताएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर पेट्रोल का जो है वो लीटर के हिसाब से, और इस लीटर के लिए हमने यहाँ किसका यूज किया, ए का यूज किया। तो पेट्रोल सेल्स एट 80 रुपीज़ ए लीटर। नेक्स्ट, हिज बाइक रन्स 850 किलोमीटर एन आर में एच जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जो साउंड है वॉवल साउंड है, और वॉवल साउंड के कारण यहाँ पर किसका यूज हुआ है, एन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आई बॉट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई ब्रॉट ए शर्ट 800 रुपीज़। हमने एक शर्ट खरीदा और ये जो इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। इस शर्ट से पहले भी यहाँ किसका यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। इन 3 एग्जाम्पल्स में आप प्रिपोजिशंस में भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ये प्रिपोजिशंस यहाँ किसका यूज़, रेट, प्राइस और स्पीड, तीनों इंग्लिश में हम आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के भी लिए यूज़ करते हैं और प्रीपोजिशन 8 का यूज़ भी करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार, पेट्रोल सेल्स 8 का यूज़ हुआ। हिज बाइक रन 8, आई बॉट ए शर्ट 8। तो 8 रेट, प्राइस, स्पीड प्रीपोजिशन 8 का यूज होता है, और रेट, प्राइस, स्पीड के लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल यूज ऑफ ए और एन के 1, 2 और 3 रूल्स हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, आवर नेक्स्ट रूल इज इट इज यूज्ड बिफोर मिस्टर, मिस, मिस्ट्रेस प्लस सरनेम। हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में कह दिया था कि द नाउन मस्ट बी नॉन आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जब मिस्टर, मिस और मिस्ट्रेस प्लस सरनेम कहते हैं कि मिस्टर शर्मा, अब हमें ये पता नहीं कि शर्मा जी कौन है। तो इस तरह से मिस्टर, मिस और मिस्टर प्लस सरनेम का यूज होता है। तो वहाँ पे भी उससे पहले भी किसका यूज होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज होगा। देखिए, ए मिस्टर शर्मा केम, सेकंड फॉर्म है, मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग। मिस्टर शर्मा मॉर्निंग में आए थे, और मिस्टर शर्मा मॉर्निंग में आए थे, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ, ए का हुआ, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि मिस्टर हु इज मिस्टर शर्मा, वो एस के शर्मा जी है या डी के शर्मा जी है। तो आप कह सकते हैं कि ए मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ए मिस्ट्रेस गुप्ता इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। कोई मिस्ट्रेस मैडम गुप्ता है और वो डोर पर आपका इंतज़ार कर रही है, तो आपको ये पता नहीं है कि वह कौन है। तो ए मिस्ट्रेस गुप्ता इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। नेक्स्ट, ए मिस चौधरी इज रीडिंग इन द पार्क। कोई जिन्हें आप केवल सरनेम जानते हैं कि वो चौधरी है, लेकिन कौन है ये आपको पता नहीं है, और वो पार्क में रीड कर रही है, तो आप कहेंगे कि ए मिस चौधरी इज रीडिंग इन द पार्क। अब मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट दे आर द ट्रांसलेट एंड द ईच वर्ड्स। उनकी आदत होती है कि पहले उसका हिंदी अनुवाद करेंगे फिर समझेंगे। तो जब आप इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ ए का एक ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका होगा कोई। नॉन डेफिनेट है, इसलिए ए का हिंदी यहाँ होगी कोई मिस्टर शर्मा सुबह आए थे, कोई जिन्हें आप जानते नहीं हैं। अगर आप वहाँ लिख देते हैं कि मिस्टर एस के शर्मा केम इन द मॉर्निंग। अभी देखिए,
मिस्टर एस के शर्मा केम इन द मॉर्निंग। अब मिस्टर शर्मा, मिस्टर कौन से, मिस्टर एस के शर्मा सुबह आए थे, इसका मतलब आप शर्मा जी को जानते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे नो यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ ए का यूज़ नहीं होगा, दे का नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका पूरा नाम सुरेश कुमार जी का नाम आ गया। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5, इट कैन बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन बट द नाउन डिनोट्स इनहेरेंट क्वालिटी। पहले जब हमने अर्लियर रूल में देखा था तो वहाँ रूल में ये था कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ होगा तो वह कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इट कैन बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। अब हमने कह दिया कि प्रॉपर नाउन के पहले भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन के पहले भी ए एन का यूज हो सकता है, बट कंडीशन, बट द नाउन डिनोट्स इनहेरेंट क्वालिटी। इनहेरेंट क्वालिटी मतलब उसमें निहित गुण की बात करते हैं आप, तो वहाँ फिर किसका यूज़ होगा, ए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हो सकता है। हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक बात देखिए आप, ये जस्ट यहाँ रख रहा हूँ, ये द नाउन डिनोट्स इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी, और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में सी इज ऐश्वर्या राय, सी इज ऐश्वर्या राय। आप ऐश्वर्या राय है और आपके कोई आपसे पूछता है कि हु इज, तो आप वहाँ कहेंगे कि सी इज ऐश्वर्या राय, सी इज ऐश्वर्या राय। जो सी है वही ऐश्वर्या राय है। इस कंडीशन में यहाँ देर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है, लेकिन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर देखिए, क्योंकि ये इनहेरेंट क्वालिटी नहीं बताता, पर्टिकुलर वही पर्सन को बता रहा है कि वो ऐश्वर्या राय है। फिर देखिए जयपुर इज पेरिस, जयपुर इज पेरिस, हाउ कैन इट पॉसिबल दैट जयपुर इज पेरिस, जयपुर जयपुर है, पेरिस पेरिस है, लेकिन आप जयपुर इज पेरिस का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जयपुर पेरिस जैसा लगता है, जयपुर इज लुक लाइक द क्वालिटी ऑफ जयपुर टू कम सेम पेरिस, तो यहाँ आर्टिकल का यूज होगा ए, जयपुर इज ए पेरिस। नेक्स्ट कश्मीर इज स्विट्जरलैंड, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड, तो जो कश्मीर है वो कश्मीर किस जैसा लगता है, कश्मीर की जो क्वालिटीज़ है, कश्मीर की क्वालिटी किससे कंपेयर की गई है, स्विट्जरलैंड से की गई है। तो यहाँ पे ये होगा कि कश्मीर इज ए स्विट्जरलैंड, ए स्विट्जरलैंड, कश्मीर एक स्विट्जरलैंड है। इट मीन्स कश्मीर एक स्विट्जरलैंड नहीं है, कश्मीर में स्विट्जरलैंड जैसी क्वालिटी है। दीज आर द कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड प्लेस है, और प्लेस के पहले आपने यहाँ पे प्लेस जुड़ गया, आपने इनहेरेंट क्वालिटी के पहले यदि प्लेस का यूज होता है इंडिया, तो फिर आर्टिकल ए नहीं होकर के यहाँ आर्टिकल होगा द। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए संगीता इज ऐश्वर्या, आपने किसी संगीता को कह दिया कि संगीता इज ऐश्वर्या, तो संगीता इज ऐश्वर्या, हाउ कैन इट पॉसिबल द संगीता इज ऐश्वर्या, संगीता संगीता है, ऐश्वर्या ऐश्वर्या है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऐश्वर्या में है वही क्वालिटी किस में है, संगीता में है। हो सकता है उसके हेयर स्टाइल में हो, वे ऑफ टॉकिंग में हो, आपकी उसकी पर्सनैलिटी में हो, तो आप उसकी क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हैं, और क्वालिटी से कंपेयर करने के कारण ऐश्वर्या यहाँ पर नाउन है, दिखने में प्रॉपर नाउन हो रही है, लेकिन इनहेरेंट क्वालिटी है, और इनहेरेंट क्वालिटी के कारण ऐश्वर्या के पहले ए का यूज होगा कि संगीता इज एन ऐश्वर्या, एन होगा यहाँ पर, संगीता इज एन ऐश्वर्या। नेक्स्ट
संगीता इज ऐश्वर्या ऑफ आवर कॉलेज। इनहेरिटेड क्वालिटी के साथ में प्लेस अगर जुड़ जाती है, जिस तरह से स्विट्जरलैंड के साथ में इंडिया जुड़ा, ऐश्वर्या के साथ में कॉलेज जुड़ा, तो कॉलेज के साथ यहाँ पर आर्टिकल किसका यूज होगा? द, क्योंकि अभी डेफिनेट हो गई कि जो संगीता है वो हमारी कॉलेज की ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या कोई अदर कोई होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कॉलेज की ऐश्वर्या तो कौन है? संगीता है। तो इस कंडीशन में जब नेम ऑफ इनहेरेंट क्वालिटी के साथ नेम ऑफ प्लेस कनेक्ट होता है, तो नेम ऑफ प्लेस के साथ में यहां पर आर्टिकल द का यूज होता है। तो संगीता इज द ऐश्वर्या ऑफ आवर कॉलेज। देखिए कालिदास, कालिदास इज शेक्सपियर, कालिदास इज शेक्सपियर, कालिदास इज शेक्सपियर, कालिदास कालिदास है, शेक्सपियर शेक्सपियर है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल द क्वालिटी कंपेयर बिटवीन द कालिदास और शेक्सपियर? हम यहाँ पे उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो क्वालिटीज शेक्सपियर में हैं वह की वह क्वालिटी किस में है? कालिदास में है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कालिदास शेक्सपियर है, नो। तो यहाँ पे देखिए कालिदास इज शेक्सपियर, कालिदास इज शेक्सपियर, यहाँ आर्टिकल इनहेरिटेड क्वालिटी की बात हो रही है, तो यह कालिदास इज ए शेक्सपियर होगा। और अगर हम कहते हैं कालिदास डैश डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाता है। उस कंडीशन में नेम ऑफ प्लेस जुड़ता ही आर्टिकल यहाँ किसका यूज हो जाएगा? आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने ए एंड द ऑप्शन, जीरो आर्टिकल ए द एंड द एंड ए, यहाँ मैंने जस्ट दीप मेंशन किया क्योंकि वो वॉवल साउंड्स थी। तो द रूल नंबर 5। नेक्स्ट अगले रूल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके